کمالیہ سمیت دیگر شہروں کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری۔ یونیورسٹی آف کمالیہ میں پہلی بار 16 جون سے داخلوں کا آغاز۔ ہونہار مستحق بچوں کو اسکالرشپ پر داخلہ ملے گا۔ یونیورسٹی کے ساتھ 10 سے 12 انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے پروفیسرز منسلک۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں گرمی کی شدید لہر۔ فیصل آباد میں دوپہر کے وقت سورج کا پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ سورج قہر ڈھانے لگا، زمین آگ اگلنے لگی۔ قیامت کی اس گرمی نے شہریوں کے پسینے چھڑا دیے۔ انسان ہو یا چرند پرند، ہر کوئی گرمی سے نڈھال، کسی کو سایہ دار جگہ تو کسی کو ٹھنڈے پانی کی تلاش۔ توبہ ٹیکسنگ اور گرد و نواح میں سخت گرمی کا راج۔ تپتی سڑکوں پر ٹریفک پولیس کے اہلکار حکومتی توجہ کے منتظر، سایہ دار جگہ تو دور کی بات، چھتریاں بھی فراہم نہ کی جا سکیں۔ اہلکار کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر ہی ڈیوٹیز انجام دینے پر مجبور۔ وارڈنز کے لیے پانی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ محرم الحرام میں جلوس، روٹس، مجالس اور امام بارگاہوں کی سخت مانیٹرنگ ہوگی۔ سیف سٹی فیصل آباد کے کیمرے رکھیں گے ہر سرگرمی پر نظر۔ پنجاب سیف سٹی کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ کو مراسلہ۔ سیکیورٹی امور میں ضلعی انتظامیہ کو معاونت دی جائے گی۔ معاشرے میں بڑھتی عدم برداشت، معمولی جھگڑوں پر قتل معمول بننے لگے۔ دیرینہ دشمنیاں بھی خاندان اجاڑنے لگیں۔ فیصل آباد میں ہر صبح کا سورج قتل کی ایک واردات کے ساتھ طلوع ہونے لگا۔ اوسطاً روزانہ قتل کی ایک واردات۔ رواں سال مختلف وجوہات کی بنا پر 163 افراد کو قتل کیا گیا۔ 50% سے زائد قتل دیرینہ دشمنیوں پر ہوئے۔ پولیس نے 90% سے زائد مقدمات کے ملزمان گرفتار کر لیے۔ سوشل میڈیا کا بیجا استعمال اور موبائل گیمنگ، جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی اور قانون میں بچوں کی سزائیں کم۔ جوونائل کرائم یعنی بچوں میں جرائم کا رجحان بڑھنے لگا۔ ڈسٹرکٹ میڈیکو لیگل آفیسر جنگ کے پاس 5 روز میں 4 بچے ایج اسیسمنٹ کے لیے لائے گئے۔ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر جوونائل کرائم کے سخت پالیسی سازی کی ضرورت ہے۔ ممنوعہ زرعی ادویات کے استعمال سے چاول کی فصل متاثر۔ گزشتہ برسوں میں کئی ایکسپورٹ آرڈرز منسوخ کر دیے گئے۔ محکمہ زراعت جنگ کے دھان کی فصل برآمدی معیار کے مطابق رکھنے کے لیے اقدامات۔ ممنوعہ ادویات کے استعمال پر پابندی۔ ضلع بھر میں رائس نرسریز کی چیکنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ گھریلو صارفین کے لیے جدید AMI میٹرز لگانے کا منصوبہ سست روی کا شکار۔ فیسکو حکام کے جون تک جدید میٹرز خریداری کے دعوے حقیقت کا روپ نہ دھار سکے۔ ہدایات کے باوجود فیسکو حکام اب تک منصوبے پر کام شروع نہ کر سکے۔ 17,573 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش۔ تمام شعبوں پر پہلے سے دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم۔ نئے ٹیکسز کا بھی کلہاڑا چل گیا۔ بجلی بلوں سے نجات کے ذریعے سولر پینلز کی درآمدات پر 18% ٹیکس عائد۔ آن لائن خریداری پر 18% سیلز ٹیکس ہوگا۔ بیرون ملک سے ڈیجیٹل اور ادائیگیوں پر 5% ٹیکس بھرنا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5% کاربن لیوی ٹیکس عائد۔ اگلے سال یہ ٹیکس دگنا ہو جائے گا۔ چپس، بسکٹ، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم، تیار خوراک سمیت متعدد اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی۔ فروزن گوشت اور تیار شدہ خوراک پر بھی 5% ایکسائز ڈیوٹی لگے گی۔ فاٹا کے لیے بھی ٹیکس چھوٹ ختم۔ ضم شدہ اضلاع پر 10% سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ $6,501 ارب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ آ گیا۔ سود کی ادائیگیوں کے لیے 8,207 ارب روپے مختص۔ دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ FPR ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے مقرر۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ صوبوں کو NFC ایوارڈ قیمت میں 8,206 ارب ملین کے حکومتی نظام چلانے کے اخراجات کے لیے 971 ارب روپے مختص کیے گئے۔ پینشنز کی ادائیگی پر 1,055 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ سبسڈیز قیمت میں 1,186 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔
महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके पर हुकूमत को रहम आ गया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस में कमी कर दी गई। 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 की गई है। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह 25 से कम करके 23% कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा होगा। मुसल्लह फौज के अफसरान और सिपाहियों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस मिलेगा। पेंशन स्कीम में इस्लाहात होंगी। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। 10 वजारतों में मुलाजमीन की छांटी होगी। 40,000 खाली असामियों को खत्म कर दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाने का फैसला। कफालत प्रोग्राम 1 करोड़ खानदानों तक पहुंचाया जाएगा। छोटे किसान को बगैर जमानत कर्ज मिलेगा। नॉन फाइलर्स का घेरा मजीद तंग। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मंकूला जायदाद भी नहीं खरीद सकेगा। नकद खरीदारी पर हर चीज महंगी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर 18% सेल टैक्स आए। मुकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर 18% टैक्स लग गया। नए बजट में बड़े कारोबारी इदारों के टैक्स में कमी कर दी गई। आइंदा माली साल सुपर टैक्स कम किया जाएगा। 20 से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन वाली कारपोरेशन पर सुपर टैक्स 0.5% कम कर दिया गया। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज दी गई। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से प्रॉपर्टी के कारोबार में तेजी आएगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खामाल की दरामद पर ड्यूटी 0 कर दी गई। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खामाल की कीमतों में भी कमी आएगी। बजट से बहुत उम्मीदें थी लेकिन मायूसी हुई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान सईम बराड़ा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, इंडस्ट्री के लिए कोई बात नहीं की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर कोई रिलीफ नजर नहीं आया। एक्सपोर्टर्स के लिए कोई प्लान पेश नहीं किया गया। कोई DLTL, कोई रिफंड्स नजर नहीं आए। फैसलाबाद के ताजरों ने बजट में नए टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने का जुल्म है। ताजरों ने कहा कि हुकूमत ने आवाम को लॉलीपॉप दिया। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई खास बजट मुख्तस नहीं किया गया। बजट के खिलाफ जंग के ताजर भी मैदान में आ गए। बोले, विफाकी बजट से बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन कारोबार के फरोग के लिए कोई ठोस पॉलिसी नजर नहीं आई। अवामी रिलीफ को भी नजरअंदाज किया गया। ईवान सनत और तजारत चुनियोट ने बजट को खुशाइन करार दे दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहद नईम फखरी कहते हैं कि बजट को अदालत शुमार का गोरख धंधा नहीं कहना चाहिए। मुल्की माली मामलात को चलाना बच्चों का खेल नहीं। पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। रवा साल पहली बार मईशत का हुजम 400 अरब डॉलर से जायद रहा, जो बड़ी कामयाबी है। पंजाब का सूबाई बजट 13 जून को पेश होगा। महकमा खजाना ने 13 जून को बजट इजलास तलब करने की समरी अरसाल कर दी। महकमा कानून ने भी 13 जून को बजट इजलास की तस्दीक कर दी। सूबाई वजीर खजाना बजट पेश करेंगे। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। बजट के हजम का तखमीना 6000 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट 1200 और हेल्थ सेक्टर के लिए 160 अरब रखने की तजवीज। महकमा प्राइमरी हेल्थ के तरक्याती बजट के लिए 60 अरब रखने की तजवीज पेश की गई। शहरों के ड्रेनेज के लिए 200 अरब रुपए रखने की तजवीज तैयार है। फैसलाबाद डिवीजन में क़यामत खेज गर्मी दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। इंसान हो या जानवर, हर जीरो गर्मी की शिद्दत से निढाल। किसी को ठंडे पानी तो किसी को सायादार जगह की तलाश रही। तिब्बी माहिरीन का शदीद गर्मी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल और बगैर जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत।
रहायश गाह पर 1 से ज्यादा मीटर्स लगवाकर प्रोटेक्टेड की लिस्ट में शामिल होना खिलाफ कानून। फेस्को ने 1 से ज्यादा मीटर्स की जदीद रीडिंग के तरीकेकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया। GMCS फेस्को का एक रहायश गाह पर 1 से ज्यादा मीटर्स का डाटा तैयार करने का हुक्म। 1 से ज्यादा मीटर से खिलाफ कानून बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का तयन जारी। वासा फैसलाबाद के ऑपरेशनल स्टाफ की ईद पर बेहतरीन ड्यूटी। शहर भर में 1200 से ज्यादा कॉल्स पर फौरी रिस्पॉन्स किया। शिकायत पर 6 खुले मैनहोल्स फौरी कवर किए, जबकि मुतअद्दिद मुकामात पर सीवरेज ओवरफ्लो होने या मैनहोल बंद होने की शिकायत को हल किया। MD वासा आमिर अजीज की ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन को शाबाश। कपास की निगहदाश्त के लिए महकमा ज़राअत जंग का 3 माह मुश्तमिल जामे प्लान तैयार। कपास की आपाशी, पेस्ट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन प्लान शामिल फील्ड टीमों की ड्यूटियां लगा दी गई। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। फी एकड़ पैदावार का हसूल भी यकीनी बनाया जाएगा। भवाना में ईद उल अज़हा के तीनों दिन सफाई के बेहतरीन इंतजाम। MPA चौधरी साकिब खान सदर के डेरे पर तकरीब। रुकन असम्बली ने सफाई वर्कर्स पर फूलों की पत्तियां निछावर की, मिठाई भी खिलाई। वजीर आला मरियम नवाज की तरफ से सीकस 10,000 इनाम देने का भी ऐलान। और जमात दहम के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। नहम जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 16 अगस्त को होगा। तालीमी बोर्ड्स ने नताइज और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का मुमकिना शेड्यूल जारी कर दिया। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 10 सितंबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार 7 अगस्त तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे।